So, good evening, everybody. Udit, thank you so much for joining us today. It was a pleasure to have you in our sessions. I have known you, I think I've known you for the past a lot of years now. I think we go back 10, 12 years, right? I 10 years. have known you through your, yeah, 10 years. I've known you through your MBA days. And after that, you joined us for our EA classes. And I'm so proud to know that you've completed your enrolled agents and now you are a former enrolled agent. So, congratulations. Uh, Before I start, I want to let you know that the purpose of these sessions that we are having is to help so many other students who may be stuck at your stage. Like you found it difficult to manage time, to come up for the classes, to take your exams. So there may be a lot of other students in your shoes, and we want to reach out to those students through this conversation to help them avoid certain mistakes, to help them get motivated to take this journey and complete the course. So, thank you so much for doing it for us. And before we begin, from your own words, we want to know more about you. So, can you tell us and all our listeners about you so that we can get started today? Thank you for the opportunity, ma'am. Yeah. My name is Udit Singh. Uh, Hmm. I completed my MBA. After completing my MBA, I got placed in PwC in US taxation. From there, I started my journey in US taxation. And in my course of journey, somewhere I feel like I need a formal certification or Hmm. a formal degree in the subject. So I thought of started pursuing enrolled agent, and Hmm. after that I saw advertisement of your Pixarlearn, and then I connected with you, and then Hmm. uh, after that, you know my journey that we Yes. do our course together, and then eventually in 2026, I completed all three exams, and Okay. So, uh, you are now in EA. yes, ma'am. So, this was your first post qualification job, right, Udit? Yes, ma'am. After MBA, this is my first post qualification. And आपको कितना time हुआ? How many years have you been here in this discipline? I'm part of US taxation since last 8 years. 8 years. Yes. Then why? So you joined me, I think, 1.5 years back, right? Around In 2024. 2024. It took you around 2 years, and मुझे याद है कि आपने you started our and you attended most of our sessions. You attended all our morning sessions. I think you did part one, and you attended all the classes actually, and then you took a hiatus, and then you sat for one paper at a time and completed it. So my question to you is कि 8 साल में basically 6 साल के बाद आपने you thought about taking a formal license via EA. Why? Why did you feel the need to do that? So the reason for that is like in starting phase, because in our formal education, US taxation is not inbuilt. So Okay. it took a lot of time to understand the concept and basic requirements of the US taxation. Okay. And also, like when I got certain that I am going to pursue my career in this only, and when I get more serious about that, this US taxation, then I thought of join Okay. pursuing the course. तो आपको लगता है कि ये इज अ क्रेडेंशियल जो आपको हेल्प करेगा इफ यू वन वंस यू डन दिस आपको लगता है कि देयर इज स्कोप फॉर दिस इवन इफ यू बीन इन द जॉब इतने साल के बाद भी यू थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प यू? हाँ मैम, मुझे लगता है कि ये बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज अनलाइक इंडिया टैक्सेशन, यूएस टैक्सेशन में ईए के पास बहुत अथॉरिटी है। वो इंडिविजुअली भी प्रैक्टिस कर सकता है, प्लस ये सर्टिफिकेशन हमेशा मेरे साथ रहेगा। लाइक इट्स ओके। नॉट, अगर मैं कहीं दूसरी जगह पे जाता हूँ या मैं सेल्फ प्रैक्टिस भी स्टार्ट करना चाहता हूँ, हम्म। तो ये सर्टिफिकेशन मुझे बहुत सपोर्ट करेगा। तो आपके आपके ऑफिस में ये एनवायरनमेंट है जहाँ पे पीपल आर वाइंग इन फॉर ये? आपको लग रहा है कि दिस इज अ डिग्री दैट माइट हेल्प? यस, हमारे ऑफिस में भी रिसेंटली कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, जिसके वजह से लाइक पीपल आर स्टार्टेड परस्यूइंग ये, ओके। बिकॉज कंपनीज आर नाउ आस्किंग टू डू सम काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन, सो दैट यहाँ के जो लोग हैं उनके ऊपर भी, जो पेरेंट कंपनीज हैं उनका ट्रस्ट बिल्ड हो। ओके। तो बट मुझे एक चीज बताओ, देखो ये एक ऐसा कोर्स है जहाँ अभी भी
apart from people who are already doing something in US taxation, not a lot of people are aware of this course. Also, we know that now, like the course curriculum is not that easy. Also, I mean, you really have to study. It's a technical course. You will have to study, and the depth of the course is pretty good. तो आज के दिन आपको लगता है कि लेट्स एंड यू नो द एलिजिबिलिटी इज ओनली 18 months. सो तुम्हें लगता है कि अगर कोई सपोजिंगली आपने जब एमबीए किया था, अगर आप ये कोर्स तब किए होते अलोंग विद एमबीए या फिर मे बी जस्ट आफ्टर यू फिनिश्ड योर बीकॉम, आपको लगता है कि यू वुड हैव हैड अ बेटर चांस इन गेटिंग अ जॉब इन अ बिग फोर टैक्सेशन? डू यू थिंक कि आज Yes. के दिन अगर एक यंग कोई सपोज बीकॉम कर रहा है, थर्ड ईयर में है, और उसके बाद उसको जॉब चाहिए बिग फोर में, तुम्हें लगता है ये डिग्री हेल्प कर सकता है? यस मैम, अगर कोई आफ्टर एमबीए या ग्रेजुएशन वो डायरेक्ट ये करके फिर जॉब मार्केट में आता है तो डेफिनेटली उसको एक एज मिलेगा किसी हम्म. भी बिग फोर या ऑडिट फर्म में जो यूएस टैक्सेशन में इन्वॉल्व है, क्योंकि तो देयर इज अ क्रेडेंशियल, माने देयर इज अ क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस डिग्री कि अगर आपके यस, पास ये डिग्री है देन यू मे गेट अ प्रेफरेंस इन गेटिंग अ जॉब, करेक्ट, राइट? यू विल गेट डेफिनेटली गेट अ प्रेफरेंस। बट व्हाट अबाउट द टैक्स सॉफ्टवेयर्स एंड ये सब जो लोगों को नहीं पता होते ज्यादा, डू यू थिंक इवन दैट इज अ रिक्वायरमेंट बिफोर यू गेट टू द जॉब? नो मैम, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है यूएस टैक्सेशन का देन सॉफ्टवेयर का नॉलेज उतना जरूरी नहीं है, बिकॉज फर्म वाइज एंड एंटिटी वाइज सॉफ्टवेयर चेंज होते जाते हैं। लाइक बहुत तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं यूएस टैक्सेशन में, कॉप टैक्स है, वन सोर्स है, देन सीसीएच है, ऐसे बहुत सॉफ्टवेयर है, गो सिस्टम, आरएस है। तो हर सिस्टम, हर सॉफ्टवेयर को सीखना किसी भी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इवन मैं भी मोस्टली वन सोर्स और कॉप टैक्स में ही काम करता हूँ, तो हर सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को सीखना ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। तो तो सॉफ्टवेयर वो वो ऑन द जॉब हो सकता है, आई मीन करेक्ट है, व्हाट यू यस, सेइंग इज वंस यू गेट इनटू अ जॉब, सो दिस डे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, हाँ तो डिफरेंट टैंजेंट पे पूछ रही हूँ, अभी आपको 2 साल लगा ये डिग्री में, टेक्निकली पीपल से कि ये तो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, यू कैन इजिली फिनिश इट इन 6 months टाइम, बट जनरली ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर ज्वाइनिंग अस टुडे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, जैसे आप थे, राइट? पीपल हु आर ऑलरेडी इन द जॉब एंड देन सो मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स वर वर्किंग प्रोफेशनल्स। अभी क्या होता है, दो तरीके के लोग हैं जो ये कर सकते हैं। एक वो जो हो सकता है कि अभी रिसेंटली मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जो कि अभी जस्ट कॉलेज के बाद ये कर रहे हैं, राइट? उनका प्रॉब्लम है कि उनको कोई वर्क एक्स नहीं है, तो उनका कोई होराइजन नहीं है, प्रैक्टिकल होराइजन, और ये पेपर काफी प्रैक्टिकल है। दूसरे एंड में आप जैसे लोग हैं जिनका ऑफिस लाइफ के साथ साथ फैमिली लाइफ एंड एवरीथिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। सो why do you think you took so long? And do you think generally, क्योंकि मैंने देखा है कि not only you, I have so many students from KPMG and Deloitte and all the big fours who are into US taxes, and generally उनका वो जो कुछ कुछ periods होता है जब हमारा रिटर्न फाइलिंग का टाइम होता है, वो 3-4 महीना बिल्कुल ब्लॉक पीरियड हो जाता है। सो टेक्निकली आपको क्या लगता है कि अगर कोई रियलिस्टिकली सोचे ये कोर्स करने के लिए, तो आपको कितना टाइम, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, इमेजिन आपका काम है टैक्सेशन में, so there will be periodic ups and downs, व्हाट इज द रीजनेबल टाइम जो आपको लगता है कि ऐसे स्टूडेंट को देना चाहिए फॉर हिम और हर टू रीजनेबली क्लियर दिस डिग्री? मुझे लगता है कि 2 साल का टाइम फ्रेम, 2 साल का टाइम फ्रेम सफिशियंट है। दो ओके. साल में इसको कंप्लीट किया जा सकता है, क्योंकि यूएस टैक्सेशन में जिसमें हम काम करते हैं उसमें 4 से 6 महीना तक का हमारा बिजी सीजन रहता है। ओके, इन एवरी ईयर? यस, एवरी ईयर। ओके. और एक मिनी बिजी सीजन भी रहता है जब हम एक्सटेंशन फाइल करते हैं। ओके. तो विच व्हाट इज द टाइम जस्ट फॉर द पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ इट? तो मार्च और अप्रैल के मंथ में हम एक्सटेंशन फाइल करते हैं। ओके. और कॉर्प के लिए, या अगर जिसने एक्सटेंशन फाइल किया है उसके लिए, हम सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में रिटर्न फाइल करते हैं। ओके. तो ये जो मार्च, अप्रैल और जून से लेके नवंबर तक का टाइम है, ये हमारे लिए बहुत बिजी रहता है। इस टाइम पे हमारे लिए 4-5 घंटा निकालना बहुत मुश्किल होता है। ओके. तो बट अगर प्रॉपरली कोई पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ना चाहे तो उसको एटलीस्ट 4 आवर्स अ डे पढ़ना ही पड़ेगा, फॉर द एटलीस्ट वर्क विद द ऑफिस विद द वर्क. ओके. 1.5 to 2 month। अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, फिर वो गैम्बल की तरफ चला जाएगा कि आप दे दिए एग्जाम, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। ओके. सो आप बोल रहे हो कि अगर आप मान के चलो, आप बोल रहे हो 4-5 मंथ्स, मैंने इन इन ईयर यू आर सेइंग फीसिबली अपने को 5 या 6 महीना ही लगता है?
पढ़ सो मैंने आपने जो किया कि यू फर्स्ट ईयर यू टुक ऑल द ट्रेनिंग एंड यू डिड वट एवर यू कुड एंड देन नेक्स्ट ईयर यू स्पेंड ऑल ऑफ दैट टाइम इन स्टडिंग और एक एक करके आपने तीनों पेपर क्लियर किया, राइट? अगर उसको हम लोग बहुत क्रंच भी कर देते हैं तभी भी मुझे लगता है कम से कम एक साल से 14 मंथ्स तक का टाइम तो रीजनेबली स्टूडेंट को देना चाहिए, अगर वो एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो। अगर उसको सर्टेनली पास करना है, ऐसा नहीं है कि जाके हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, बिकॉज पास मार्क काफी हाई है आपके यहाँ, राइट? अराउंड लाइक ऐसा तो 80 कुछ, आप है। हाँ कुछ बोला हुआ नहीं है कि पासिंग मार्क्स क्या है, बट अराउंड 70 to 80% आपको स्कोर करना पड़ेगा। हाँ, सो यू नीड प्रिपरेशन, राइट? Right, ma'am. ओके। मुझे और एक चीज बताओ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि हम लोग तो ना सिर्फ एक ही रिटर्न में काम कर रहे हैं। अब हमें पता है ये बात, राइट? वंस यू स्टार्ट वर्किंग यू गेट इनटू सर्टेन रिटर्न्स, पार्टनरशिप रिटर्न कर रहा है तो वो पार्टनरशिप। तो इन दैट केस तुम्हें लगता है कि ये टेक्निकल नॉलेज, आई मीन अपार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिकल यूज, कि एक लाइसेंस मिलता है, यू हैव अ पर्टिकुलर लाइसेंस विच हैज अ इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी, अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हें लगता है कि दैट लर्निंग ऑल्सो हेल्प्स यू इन योर जॉब इन सम वे? डू यू थिंक लाइक दैट? यस मैम। स्पेशलाइजेशन में हम चले जाते हैं, जैसे ही हम काम स्टार्ट करते हैं हम स्पेशलाइजेशन में चले जाते हैं। ओके। बट कितना भी स्पेशलाइजेशन हो जाए, एक ओवरऑल नॉलेज लेना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज हम हाउ कहीं ना कहीं सारे चीज एक दूसरे के साथ लिंक रहते हैं। बिकॉज जैसे हम्म। मैं कॉर्पोरेट टैक्सेशन में हूँ, बट कॉर्पोरेट टैक्सेशन में भी कुछ पार्ट्स इंडिविजुअल्स के हम्म। कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, लाइक हम्म। डायरेक्टली नहीं आते हैं बट इनडायरेक्टली आ जाते हैं। तो हम्म। कहीं ना कहीं वो हेल्प जरूर करता है। तो लाइक You फ्रॉम do माय, think it's a good investment, even if यस, you want to continue in taxation, यस, which I totally agree. मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस भी काम में हो, you may be in a very small molecular part of it, but if you know the whole, at least you have the horizon to think of the other aspects. नहीं तो वो बहुत ही एक clerical nature of the job हो जाता है. I mean, it's difficult for you to foresee. देखो, एक स्टूडेंट, एक चीज ना, जनरली इंडिया में बहुत स्टूडेंट्स जो हु आर नॉट इन द बिग फोर, हु आर नाउ एक्सप्लोरिंग दैट एज एन ऑप्शन, वो पूछते हैं कि इंडिया में तो टीआरपी का स्टेटस उतना अच्छा नहीं है, राइट? पीपल से कि इंडिया में तो टीआरपीज आर जस्ट रिटर्न फाइलर्स, वो तो केवल, उनका कोई क्रेडिबिलिटी उतना नहीं है। डू यू थिंक द सेम थिंग अप्लाइज फॉर ईएस इन द यूएस? नो मैम, ये के पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी है कंपेयर टू टीआरपी इन इंडियन टैक्सेशन। So I want you to elaborate on this for students who don't know so much about what is this degree about. सो जैसे अगर मैं कंपेयर करूं इंडिया के टीआरपी से, तो इंडिया के टीआरपी के पास साइनिंग का अथॉरिटी है, बट जैसे ही टैक्स ऑडिट आ जाता है तब टीआरपी उसको नहीं कर पाता है, हम्म। क्योंकि उसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को इन्वॉल्व करना जरूरी हो जाता है। तो बट ऑडिट माने स्क्रूटनी, बेसिकली कोई भी एक इंक्वायरी आ गया अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, राइट? यस मैम, उसके अलावा भी अगर टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है हम्म। तो भी एक टीआरपी वो नहीं कर सकता टैक्स ऑडिट। ओके। बट ये के साथ वो लिमिटेशन नहीं है, ये सारा चीज कर सकता है। वो कॉर्पोरेट का भी रिटर्न प्रिपेयर कर सकता है, इंडिविजुअल का भी कर सकता है। वो किसी भी नोटिस, किसी भी चीज के लिए आईआरएस के सामने फॉर हिज और हर क्लाइंट वो स्टैंड भी ले सकता है। तो बेसिकली रिप्रेजेंट कर सकता है, मैंने अगर कोई टैक्स ऑडिट आया तो एक लाइसेंस्ड, ये हमें पता है, बट देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु डोंट नो अबाउट इट, सो वी नो वी काइंड ऑफ एजुकेट देम कि इट इज नॉट द सेम। ऑल्सो मुझे भी एक चीज बताइए, आप इंडिया में हो एंड ये सारा कुछ फाइल हो रहा है यूएस के आईआरएस में, सो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रिप्रेजेंट? सो डू यू थिंक इट इज प्रैक्टिकली feasible for somebody from India to represent somebody in front of IRS? Do you think that's possible? नो मैम, इसके मुझे उतना आइडिया नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन हम इंडिया से डायरेक्ट, क्योंकि अगर पर्सनल रिप्रेजेंटेशन वो मांग लेते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। जो अगर हम पर्सनल ऑडिट्स इंडिया, होते हैं, राइट? करेक्ट मैम। But for all practical purposes, a lot of work now can be done online, जो यस, कि पहले possible नहीं था शायद, but do you think these boundaries make a lot of difference as far as the work is concerned? नो मैम, आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा चीजों में लिमिटेशन आएगा। थोड़े बहुत जहाँ पे इन पर्सन होना जरूरी है सिर्फ वही लिमिटेशन आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ द टास्क आर ऑटोमेटेड एंड कैन बी डन थ्रू ऑनलाइन सर्विसेज। सो वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी।
और आप अभी जो इंडिया से काम कर रहे हो, डू यू ऑल्सो लाइस विद द क्लाइंट डायरेक्टली, और इज इट दैट देयर समबडी एल्स इन द यूएस हुज लाइसनिंग विद द क्लाइंट एंड देन आस्किंग यू टू डू द बैकग्राउंड वर्क? व्हाट इज द काइंड ऑफ वर्क दैट यू डूइंग? तो हम जो करते हैं, हम पहले यूएस में हमारा एक टीम है, उनके साथ हमारा ज्यादा कम्युनिकेशन होता है, क्लाइंट के साथ उतना कम्युनिकेशन नहीं होता है, ओके। बिकॉज ड्यू टू द टाइम डिफरेंस। हम्म। और बट क्लाइंट के मेल्स में हम कॉपीड रहते हैं, तो हमारे पास सारा अपडेट आते रहता है, बट You have full visibility of the full flow. It's not that you're not having visibility of the entire thing, right? यस, वी हैव विजिबिलिटी ऑफ एंटायर थिंग, बट हम वो कॉल्स ज्वाइन नहीं करते हैं, या हम जो फिजिकल ऑफिस में जाना होता है वो हमारे, हम इंडिया में है तो वो पॉसिबल नहीं होता है। Okay. बट हम मेल चेन में सारे लूप में रहते हैं, तो पूरा विजिबिलिटी रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। Okay. अभी थोड़ा सा हटके, we just talking about the preparation. So imagine if somebody is in your shoes और उसने डिसाइड किया है कि वो ये का पेपर देगा। उस केस में ना, you joined Pixelon. So how did you use our material, or how did you plan your studies for doing EA with us? I mean, what was your methodology? तो मैंने पहले क्लासेस लिए, क्लासेस के बाद मैंने स्लाइड को पढ़ा, स्लाइड पढ़ने के बाद एमसीक्यूज को अटेम्प्ट किया, एमसीक्यूज करने के बाद फिर मैंने बुक से उसको रीड किया। हम्म। तो अगर हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो बहुत इजी हो जाता है कंप्लीट करना हाँ, कोर्स। बिकॉज इट्स अ लॉ, राइट? तो मुझे ये लगता है कि एक बार लॉ समझ में आ जाए और आपने अगर उसको प्रैक्टिकली कर लिया, देन इट बिकम्स सो मच इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन। बट हाउ हाउ वेल प्रिपेयर्ड वर यू टू राइट द पेपर? लाइक आपका ये सब करने के बाद, वंस यू रोट योर एग्जाम, हाउ व्हाट वुड बी योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन? वर यू कॉन्फिडेंट इवन व्हेन यू वर राइटिंग द पेपर्स कि हाँ मुझे ये आता है? डिड यू फील प्रिपेयर्ड? यस मैम, थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस रहता है, बट 100% कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि टैक्स है तो बहुत वास्ट है। Okay. But तो that you would remain the same. हाँ, तुम्हारा MBA days से ये गया, you were one of those very serious guys, but at the same time वो हमेशा से ना, you would say that कुछ और हो सकता था, हो सकता है कुछ और हो सकता था, right? क्योंकि ये बहुत वास्ट चीज है, तो मैं कभी भी नहीं बोल सकता कि मैं 100% प्रिपेयर्ड हूँ। हाँ, but when you saw the papers, you felt as if you know about it, right? देखो, कोई भी भगवान तो नहीं है कि उसको सब कुछ पता होगा, right? बट आफ्टर सीइंग द पेपर, लाइक वी लाइक जब पेपर देखा, आई नो एवरीथिंग, ऑल क्वेश्चंस आर इजी, they don't ask very complex questions, so if you have concept you can clear it easily. तुम्हारा एक अटेम्प्ट में हुआ था ना तीनों? Yes वन ma'am. टाइम? Yeah. ओके। एंड आपने शायद पहले पार्ट वन लिया था, नो पार्ट थ्री, देन पार्ट वन, देन पार्ट, नो पार्ट थ्री, पार्ट टू, पार्ट वन, कैसे लिया था आपने? फर्स्ट मई में मैंने पार्ट 3 दिया था, हाँ। जनवरी में पार्ट 1 दिया, फरवरी में हम्म। पार्ट 2 दिया। राइट। मुझे एक चीज बताओ, अगर आज के दिन कोई शुरू कर रहा है ये, इन दैट केस क्या तीन मिस्टेक्स है जो आप बोलोगे मत करो, जो आपको, लाइक इफ यू वुड हैव नोन इट बेटर, यू वुड हैव बीन एबल टू अवॉइड दोस मिस्टेक्स? एनी सच मिस्टेक्स कम्स टू योर माइंड जो आप एडवाइस कर सकते हो स्टूडेंट्स को कि डोंट डू इट? हाँ मैम, मिस्टेक में सबसे पहला मिस्टेक जो करते हैं हम, कि बुक पढ़ लेते हैं। बुक से बहुत ज्यादा रिलाई करने का मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, हमको एमसीक्यूज में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। आई टोटली एग्री, अगर यस। एमसीक्यू नहीं हो रहा है, फिर हमको कंसेप्ट के लिए बुक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं बोलूंगा, अगर हम तीन चीजों को फॉलो करेंगे, लाइक फोकस ऑन कंसेप्ट, और अगर हम कंसिस्टेंट रहते हैं और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा क्लियर हो जाएगा। I also agree. Like to a great extent, this is what we have already been promoting. Keep, show up for the classes, understand the concepts really well, and then practice. Whatever time you have, practice the MCQs. But at least in topics like part three, it's important to read the material also, because it is so much. No, it's not practically possible to drill everything down in terms of PPTs. So even reading the book to a great extent, whichever book you are following blind, right? Yes, Whichever book or whichever content you're following, at least for certain papers, it's important that you should be able to read certain material, at least at the end of the day वो एक law है, तो that up top of the mind वो एक recall होना चाहिए, yeah, because that's important. बट मैम मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है स्लाइड, देन क्वेश्चन, देन बुक। सो स्लाइड्स हम लोग जो दे रहे हैं, राइट, बिकॉज वो समझ में आ गया, राइट? आपने स्लाइड के बाद अगर क्वेश्चंस पढ़ा, सो दैट इज आवर मेथोडोलॉजी फॉर बोथ सीपी एंड ई। हम फर्स्ट यू स्टडी, अंडरस्टैंड, then you do the questions, and after that you read the book. By that time book becomes really easy for you to recall.
Yes. Okay. What according to you was the most difficult part to clear? Ma'am, part one is most difficult because it contained lot of concept, हाँ. lot of slabs, lot of calculation. And part one needs a lot of retaining also to be Yeah. done. बहुत कुछ दिमाग में रखना पड़ता है. Okay. So and yeah, just to give you an idea, उदित सी हम लोग जब सीपीए भी पढ़ाते हैं, सीपीए में क्या है, मटेरियल कम है. वी डोंट गो इन दैट मच ऑफ डेप्थ इन एवरीथिंग. कम है एंड उसको बहुत घुमा घुमा के एंड वी अप्लाई द थिंग्स. ईए में देर इज अ लॉट ऑफ डेटा. There's just so many things that we miss out on CPA, which is there in EA. So the volume is so much, and you have to keep a lot of data in your mind, and also that data changes every year. So the Yeah. threshold limits changes every year. So ideally, part one, to jab the day when you study that same year, you should study for part one, because the fact that next year फिर से अभी वो one bill act आ गया, again there will be some provision changes. So part one generally I suggest should be the first paper, because if you handle volume, if you can handle part one, then part two, part three becomes relatively way easier. Generally तुमने part three दिया, but generally मैं prefer नहीं करती हूँ part three, because part three में ना chance of clearing इज द लीस्ट एक्चुअली. मैंने जो डाउट मुझे लगता है ना, थोड़ा बहुत पार्ट थ्री में ही लगता है, बिकॉज इतना थ्योरी है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा रेशियो होता है कि नहीं भी पास कर सके. बट पार्ट वन पार्ट टू, इफ यू पुट एन एफर्ट, यू विल सी द रिजल्ट. इट इज लाइक दैट. सो मैं जनरली नहीं अलाउ करती हूँ कि इफ यू आस्क माई सजेशन, मैं बोलती हूँ फर्स्ट डू पार्ट वन, बिकॉज your effort and your result would go hand in hand. And if you clear one paper, the other two will fall in place. So that has generally been my suggestion to the students. Any individual paper-wise learning that you want to share with us, like part three, if there was anything that comes to your mind, top of the hat, anything? Part three, I struggled to understand Levi versus Lien. So Mm. please Okay. try to remember the timelines, because a lot of timelines are there. Like within 10 days, you have to do this. Within 30 days, you have to do this. So uh, in part three, the timelines are like exhaustive. Everything has different timeline. 3 year you have to retain the books. Then 6 year if Mm. security, 7 year. Like lot of timelines are there. So like preparation wise, if you note down those timelines in one place, that will help Mm. a lot, because most of the people, like me, including me, got confused in timelines. Like I remember 3 year, but for which the three हाँ year हाँ, पार्ट थ्री में ये प्रॉब्लम है, बहुत कुछ है टेक्निकल, वो जो टॉपिक्स है जिसमें इट्स नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग अ लॉट, इट्स नॉट अबाउट रिटेनिंग अ लॉट. सो यू नीड वेरी क्विक रिविजन फॉर पार्ट थ्री. यू नीड टू रिवाइज रियली वेल बिफोर you sit for the paper. Yeah. and part one, the phase outs. Every slab has a phase out, so you have to remember that phase out. But पर if इतना क्वेश्चंस आता है फेज आउट से? no, ma'am, phase out से उतना कुछ पूछते नहीं है. But if it is there, you have to read, right? So उसको ओके. like वो फेज आउट्स को, मॉनेटरी लिमिट्स को अगर हम कहीं नोट करके रखते हैं तो वो बहुत हेल्प करेगा. ओके. ओके. एंड इन पार्ट टू में ओनली कॉन्सेप्ट इज नीडेड, बिकॉज nothing else is required. If you have concept, you can clear part. Part two actually I feel is the easiest to clear Yeah. and the easiest to prepare also, because उसमें रटने का ज्यादा कुछ नहीं है. You just have to understand the concepts. But हाँ, वो concept पूरा clear होना चाहिए. अगर वहां पे कुछ loop holes होगा तो वो show कर जाएगा, because the papers are not like, see, मुझे लगता है यूएस के सभी पेपर में more than the practice, it is how much have you imbibed, how much can you correlate the topics and do it. तो अगर वो concept poor होगा तो वो कहीं ना कहीं दिख जाएगा पेपर में. So that is important, I think. पार्ट टू में कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी And तुम लोगों का तो शायद corporate में ही काम था, so it always, did you feel that it helped you because of the fact that you were working in corporate? है. Yes, ma'am. It helped very minimum, because Okay. क्योंकि जो हमारे सिलेबस में है उसमें मोस्टली फॉर्मेशन, Exactly. इंस्पिरेशंस है. बट हमारा जो काम है उसमें हमको डे टू डे एक्टिविटी Operation. में रहना, Yes. ऑपरेशंस में रहना पड़ता है. ऑपरेशंस पे उतना फोकस नहीं है सिलेबस पे. सो बट कंसेप्ट में बहुत चीज का क्लियरिटी आता है. जैसे
एक पर्टिकुलर चीज जो मुझे स्ट्राइक किया, जैसे हमारे क्लाइंट में हमने देखा कि जो डिसरिगार्डेड एंटिटीज होती हैं उनको कंसोलिडेटेड रिटर्न में एज अ मेंबर लिया हुआ है। तो मुझे उस टाइम पे बहुत बार ये लगता था कि डिसरिगार्डेड एंटिटी को कैसे कंसोलिडेटेड लेवल पे ले रहा है, बिकॉज वो तो डीआरई है, वो तो कहीं रिपोर्ट करेगा फिर वो आना चाहिए। बट आफ्टर स्टडिंग आई गॉट टू नो कि there is an option that a DRE can choose to file as a corporation. So if Yes. they choose that, then they can be included in a consolidated return. So Yes. ये पढ़ने के बाद पता चला, उसके पहले पता नहीं था। So ऐसे बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। और अभी आपने क्लियर किया है, बट इसके बाद व्हेन यू विल स्टार्ट डू सो अ लॉट ऑफ स्टफ, यू नो, इट्स लाइक सेइंग यू आर इन अ रूम व्हिच इज डार्क and you're doing something and suddenly somebody has switched on the light and again switched off the light. So suddenly you start being aware of so many other things which probably तुम्हारे वो डोमेन में नहीं था पहले, राइट? मुझे एक चीज बताओ उदित, हाउ इम्पोर्टेंट इज फॉर अ पर्सन टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग इफ दैट पर्सन इज ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन? लाइक अगर किसी के पास सपोज, ये हमें अभी स्टूडेंट्स पूछते हैं, देयर आर स्टूडेंट्स नाउ हु डोंट हैव अ फॉर्मल अकाउंटिंग बैकग्राउंड एंड दे वांट टू टेक अप टैक्सेशन. Do you think when you're working or otherwise it will make a huge difference if you do not have a very solid accounting background? Yes, ma'am. See, the point is, अगर आप टैक्सेशन में हो, so that number should strike in your mind. आपको नंबर देख के पता चलना चाहिए कि ये सही है कि गलत है। तो वो करते करते आइडिया हो जाता है। तो अगर नंबर क्रंचिंग के साथ आप फेमिलियर नहीं हो, आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और अकाउंटिंग कंसेप्ट तो डायरेक्टली यूज नहीं होते हैं, बट अगर आपके पास कंसेप्ट रहेगा तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। ऑल्सो मुझे लगता है स्पेशली इन एरियाज लाइक कॉर्पोरेट टैक्सेशन, अपने तो अकाउंट्स ही लेके उसको टैक्स में कन्वर्ट करते हैं, सो फॉर दोस तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प. यस मैम, वो तो ओके, yeah, I also agree कि अगर नहीं भी है तो you'll have to have some basic knowledge of account accounting before you can get into formal practice. And if you are not comfortable with numbers, it will be very difficult. Yeah, that goes without saying. That really goes without saying. Yeah. What is it going ahead? अभी क्या plan है for the next couple of years after the EA degree? Do you think any change coming into your life with this degree, or any change about to come to your life with this? So have this degree, you must have had certain thoughts before you signed up for the degree, right? Do you think it's working in that direction? Did you gain anything? Yes, ma'am. See, it will help professionally because now I got a certification. So it will increase my position in the organization. Like now people will start trusting me that, okay, now this person has a certificate. So this person must have a good understanding or knowledge because he has Okay, तो वो credibility है, the degree का वो credibility है कि Yes. अभी you don't have to convince people a lot about your potential. The degree speaks for you, right? Yes, ma'am, definitely. Okay. Anything else that you want to talk to our listeners? Any last words for a business? It was such a good conversation, huh, Udit? I'm sure there's so many others who must be having so many questions in their mind which got answered. But anything else that you want to end up before we formally end this? Ma'am, like I just wanted to say one thing that please, whoever is planning to start this course, please prepare a fixed schedule so that you can put your designated time to this course. Then only it will be easy for you to clear this exam. If that discipline is not there, if you are not reading for at least 3 hours a day, then it will be very difficult to Yeah, that goes with all the upskilling courses now. Abhi to we are no longer like, you know, like formal students where parents are serving us. So now you have started having so many hats, right? You are you're married, you have family, then you have work. So problem यही होता है कि जो हम लोग, you know, we keep saying this कि problem ये होता है कि now studies go to the next level of priorities. And the biggest thing that you have to do now when you've chosen to sign up for a course is उसको थोड़ा ऊपर लाना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर लाना पड़ेगा कि थोड़ा टाइम में तुमको सोचना पड़ेगा कि नहीं, दिस हैज टू बी माय प्रायोरिटी. थोड़ा सा टाइम दे टू कॉम्प्रोमाइज अदर थिंग्स एंड ब्रिंग इट अप in your priority list. And consistency बहुत जरूरी है because without consistency, you know, all your efforts will be scattered.
You need to have that razor focus deadline कि हम ये इस टाइम पे we have to sit for the paper, जो prepare करके एक बारी में finish करो. I mean, if you just keep it lagging for a lot of time ना, तो वो drop out ही हो जाता है. There's a lot of people who are also dropping out of the course, for the same reason कि वो discipline नहीं हो पाता है. So which is awesome because you had a child in that time, I remember. So a lot of changes happening to your life now, and it feels so good to see you growing. Now Udit, it's been a very, very good journey. See you transform as a professional, and wish you all the best. Thank you so much for doing it with us. It was a very good conversation. I had a great time. Okay, I had a really good time having you on board with us.